Hello everyone, welcome back to my channel. Today class we are going to learn about congenital heart disease. So before we start, please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for updates. So let's start the topic, that is congenital heart disease. First, meaning. Congenital heart disease is a defect in the structure of the heart and great vessels that is present at birth. Okay, congenital heart disease, there is a defect in the structure of heart and any great vessels that is present during the birth. Then, congenital heart disease is mainly classified into two types, acyanotic and cyanotic. In acyanotic heart disease, there is further classified into two types, increased pulmonary blood flow and second, obstruction of blood flow from ventricle. In increased pulmonary blood flow, there are subclassifications. First is arterial septal defect, ventricular septal defect, patent ductus arteriosus, atrioventricular canal. Second, obstruction to blood flow from ventricle. Under this, three subclassifications are there: co-erectation of aorta, aortic stenosis, and third, pulmonic stenosis. This is the classification of acyanotic heart disease. Then, second, cyanotic. Under this cyanotic heart disease, it is further classified into two types: increased pulmonary blood flow and mixed blood flow. Under the increased pulmonary blood flow, three conditions are there: tetralogy of Fallot, tricuspid atresia, and Epstein anomaly. And in mixed blood flow, transposition of great arteries, truncus arteriosus, and hypoplastic left heart syndrome. Okay, so this is the whole classification of heart disease. Okay, mainly it is divided into two types, acyanotic and cyanotic. Then in acyanotic, it is divided into two types. Then cyanotic, it is also divided into two types. Then, first we start first classification, that is acyanotic heart disease. Definition: this defect with increased pulmonary blood flow, increased blood flow, increased blood to flow from the high pressure left side of the heart to the low pressure right side of the heart, increased pulmonary blood flow. ओके, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज मीन्स इसमें जो जितने भी हार्ट कंडीशंस होंगे इसमें बच्चा जो है वो साइनोस्ड नहीं होगा. वाई? बिकॉज इस डिफेक्ट में क्या देखने को मिलेगा, जितने भी एसाइनोटिक हार्ट डिजीज हैं इसमें जितने भी डिफेक्ट देखने को मिल रहा है उसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है पल्मोनरी ब्लड फ्लो. पल्मोनरी ब्लड फ्लो क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है. और जो ब्लड का फ्लो है, जितने भी एसाइनोटिक हार्ट डिजीज हैं इसमें जितने भी ब्लड फ्लो रहते हैं वो आपका लेफ्ट टू राइट शंटिंग रहता है. ठीक है, ये मेजर डिफरेंस बिटवीन है आपका एसाइनोटिक और साइनोटिक हार्ट डिजीज के बीच में. ठीक है, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज जितने भी इसमें कंडीशंस हम देखेंगे, इसमें जितना भी ब्लड शंटिंग हो रहा है, ठीक है, वो आपका लेफ्ट टू राइट होता है. दैट मीन्स हाई प्रेशर ऑफ जो ब्लड है वो लेफ्ट साइड से आता है और राइट साइड में डिपॉजिट होता है. ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो का प्रेशर इंक्रीज होता है. ठीक है, इस वजह से बेबी में साइनोसिस का कंडीशन देखने को नहीं मिलता है. ओके, देन अंडर दिस एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो के अंदर का जो हमने फर्स्ट सब क्लासिफिकेशन पढ़ा था, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, इसको हम ASD भी बोलते हैं. ठीक है, सो क्या होता है इसमें, एन आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट इज एन एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रिया रिजल्टिंग इन लेफ्ट टू राइट शंट ऑफ द ब्लड. ओके, सो ये पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. ठीक है, ये हमारा क्या है, लेफ्ट एट्रियम है और ये पार्ट जो है ये हमारा राइट एट्रियम है. ठीक है, और इन दोनों के बीच जो सेप्टम है वो क्या है, ओपन है, जिसके वजह से हाई प्रेशर से ब्लड आ रहा है लेफ्ट से और ये डिकम्पोज हो रहा, मतलब डिपॉजिट हो रहा है राइट साइड, मतलब राइट एट्रियम में डिपॉजिट हो रहा है. ठीक है, हाई प्रेशर से ब्लड आ रहा है आपका लेफ्ट एट्रियम से और ड्यू टू यहाँ पे क्या है,
डिफेक्ट होने की वजह से, ठीक है, सेप्टम ना होने की वजह से हाई प्रेशर से जो ब्लड आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में वो कहाँ जा रहा है, राइट एट्रियम में, ठीक है। फिर राइट एट्रियम से वो कहाँ पे जाता है, राइट वेंट्रिकल से, और राइट वेंट्रिकल से फिर वो कहाँ चल देता है, वापस से पल्मोनरी सर्कुलेशन में चल देता है, जिस वजह से पल्मोनरी जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप आपको आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें मेनली क्या रहता है, जो राइट और लेफ्ट एट्रियम है इसके बीच क्या रहता है, एबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट रहता है, जिस वजह से लेफ्ट एट्रियम का जो ब्लड है वो शंटिंग होता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो डायरेक्ट राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया है वो डायरेक्ट आपका फिर से वापस से पल्मोनरी सर्कुलेशन में चल देता है, ठीक है, जिस वजह से पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज देखने को मिलता है। सो हियर देयर इज अनदर पिक्चर ऑफ ASD, ठीक है, ये हमारा क्या है, लेफ्ट एट्रियम है, ये हमारा राइट एट्रियम है, जहाँ से ब्लड अगर लेफ्ट ड्यू टू डिफेक्ट लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में, देन राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप हो रहा है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन में, ठीक है। इस वजह से पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है यहाँ पे ब्लड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ब्लड फ्लो, ओके। Then what are the causes of arterial septal defect? So many causes unknown है, या सेकेंड नोन कॉज क्या हो सकता है, ड्यू टू जो सेप्टम है वो प्रॉपरली फॉर्म ना हो पाने की वजह से, ठीक है, ये डिफेक्ट देखने को मिलता है, या फिर कोई जीन में डिफेक्ट है, या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, ठीक है, बेबी में किसी भी टाइप का अगर इन्फेक्शन है, या मदर कोई ड्रग कंजप्शन करी है ड्यूरिंग टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, तो उस वजह से उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से सारी चीज़ें देखने को मिलता है। देन टाइप्स ऑफ ASD, तो ASD जो रहते हैं मेनली 3 टाइप्स का देखने को मिलता है, ठीक है, ऑस्टियम प्राइमम, ऑस्टियम सिकंडम एंड साइनस विनोसस, ठीक है, जो यहाँ पे पिक्चर में भी देख रहा होगा, ठीक है, ऑस्टियम प्राइमम, ऑस्टियम सिकंडम एंड साइनस विनोसस, ठीक है। ये भी एक पिक्चर है, यहाँ पे भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है, कि कहाँ पे जो डिफेक्ट है वो प्रेजेंट रहता है, ये है सिकंडम आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, इस पार्ट में अफेक्टेड है, ठीक है, सिकंडम मतलब हम इस पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। देन प्राइमम आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट मीन्स ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है, दिस रीजन, ओके, यहाँ पे भी आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ठीक है। सो ये था लोकेशन की कितने टाइप्स का होता है और कहाँ कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। देन पैथोफिजियोलॉजी, सो फर्स्ट इज आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट कैसे हो रहा है, ड्यू टू लेफ्ट टू राइट शंट, ठीक है, मैंने प्रीवियसली बताया है कि जितने भी एसाइनोटिक हार्ट डिजीज है इसमें जितने भी ब्लड शंटिंग होता है, ठीक है, वो आपका लेफ्ट टू राइट होता है, और साइनोटिक हार्ट डिजीज जब हम पढ़ेंगे उसमें जितने भी शंटिंग होंगे वो क्या होगा, राइट टू लेफ्ट होगा, ठीक है, ओके। देन लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, यहाँ पे शंटिंग हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट राइट मतलब हाई प्रेशर से ब्लड लेफ्ट से आ रहा है और लो प्रेशर के साथ वो राइट में जा रहा है, देन उसके वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है पल्मोनरी ब्लड फ्लो, क्योंकि राइट एट्रियम में आने के बाद वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से वो डायरेक्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन में चल देता है, ठीक है, उस वजह से पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज देखने को मिलेगा। देन उसके बाद क्या हो रहा है, पल्मोनरी वेस्कुलर ऑक्लूसिव, ठीक है, पल्मोनरी वेसल्स में काफ़ी ज़्यादा ब्लड फ्लो होने की वजह से कंजेशन देखने को मिलता है, पल्मोनरी कंजेशन, ठीक है, और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी देखने को मिलेगा, ठीक है, और इसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्रिएट होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो हो रहा है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे, और उस वजह से राइट वेंट्रिकुलर फेलियर भी हो सकता है। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर क्यों होगा, क्योंकि राइट वेंट्रिकुलर फेलियर क्यों होगा, बिकॉज ऑफ जो ब्लड है वो आपका क्या हो रहा है, राइट एट्रियम सॉरी लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में आ रहा है, राइट एट्रियम से डायरेक्ट सारा ब्लड आपके राइट वेंट्रिकुलर में आके डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ब्लड यहाँ पे ही एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ठीक है, इस वजह से राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होने का चांसेस रहता है, और यहाँ पे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी देखने को मिलता है। देन क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर में क्या देखने मिलेगा, डिस्निया, मर्मर, बल्जिंग ऑफ चेस्ट, पुअर वेट गेन, फटीग, स्वेटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ,
chronic heart failure, और child tired easily when playing. Then diagnosis, फर्स्ट फिजिकल असेसमेंट. फिजिकल असेसमेंट के दौरान हम क्या पता करेंगे कि हार्ट का साउंड जो है वो प्रॉपर साउंड आ रहा है कि नहीं. ठीक है, तो इसमें कैसा हमको साउंड सुनने मिलेगा, मरमर साउंड. देन चेस्ट एक्सरे. चेस्ट एक्सरे में हमको क्या देखने मिलेगा, जो हार्ट का साइज है वो क्या रहेगा, एलार्ज रहेगा, क्योंकि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिल रहा है. थर्ड ईसीजी, इसमें हमको एबनॉर्मल रिदम देखने को मिलेगा. देन 2D इको, इसको हम क्यों करते हैं, ताकि किस साइट पे हमारा आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट प्रेजेंट है. ठीक है, चाहे वो सेकंडम है या प्राइमम है. ठीक है, ये देखने के लिए हम 2D इको करते हैं. देन कार्डियक कैथेटराइजेशन एंड कार्डियक एमआरआई. देन मैनेजमेंट. स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट विल बी डिटरमाइंड बाय द चाइल्ड फिजिशियन. ठीक है, इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए हमको स्पेशली पीडियाट्रिशियन से ही कॉन्टेक्ट करना होता है. द चाइल्ड एज, ओवरऑल हेल्थ एंड मेडिकल हिस्ट्री हमको पता होना चाहिए. ठीक है. देन एक्सटेंट ऑफ द डिजीज, मतलब डिजीज के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज, कब से ये प्रेजेंट है, सारा चीज. ठीक है. देन द चाइल्ड टॉलरेंस फॉर स्पेसिफिक मेडिकेशन एंड प्रोसीजर और थेरेपीज. ठीक है, जो भी हम मेडिकेशन दे रहे हैं, प्रोसीजर कर रहे हैं, उसके लिए बच्चे के पास टॉलरेंस लेवल होना चाहिए. देन हाउ द चाइल्ड डॉक्टर एक्सपेक्ट द डिजीज टू प्रोग्रेस. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है. देन द ओपिनियन और प्रेफरेंस. देन सेकेंड, मेडिकल मैनेजमेंट. Many children have no symptoms and require no medication. However, some children may need to take medication to help the heart work better, since the right side is under strain from the extra blood passing through the arterial septal defect. ठीक है. Medication that may be prescribed include digoxin, diuretic and antibiotic to control the infection. ठीक है. देन कार्डियक कैथेटराइजेशन. मेनली इस कंडीशन में हम कार्डियक कैथेटराइजेशन भी फॉलो करते हैं. ठीक है, ताकि जो भी डिपॉजिट्स रहते हैं, ठीक है, या जो शंटिंग के थ्रू, ठीक है, मतलब कैथेटराइजेशन के थ्रू जो ब्लॉकेजेस अगर है उसको हम क्लियर करने के लिए कैथेटराइजेशन का प्रोसेस यूज करते हैं. ठीक है, वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को क्लियर करने के लिए, ताकि कोई ब्लॉकेज ना हो. देन सर्जिकल रिपेयर. आइडियल एज जो रहता है हार्ट सर्जरी के लिए बच्चों में 2 to 5 इयर्स का रहता है. ठीक है, इस ड्यूरेशन में ही हम सर्जरी के लिए प्रेफर करते हैं. ठीक है. सो द सर्जिकल क्लोजर ऑफ दिस डिफेक्ट इज कैरिड आउट थ्रू एन इंसिजन इन द मिडल ऑफ द चेस्ट. A heart lung machine is used to do the work of heart while the heart is cooled, stopped, emptied and opened through the right atrium. Okay. The hole in the wall between the right and left atrium is closed with stitches if it is small. ठीक है, यहाँ पे पिक्चर आपको दिख रहा होगा. ठीक है, अगर जो राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच जो ओपनिंग है, ठीक है, वो अगर छोटा सा है, स्मॉल है, तो उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्लोजर कर सकते हैं स्टिचेस के साथ. ठीक है, स्मॉल अगर है तो उसको हम स्टिच के साथ क्या करते हैं, उसको ओपनिंग को हम क्लोज कर देते हैं. बट अगर जो ओपनिंग है वो काफ़ी वाइड लेवल पे है, काफ़ी चौड़ा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पैच यूज़ करते हैं. ठीक है, इसको हम डैक्रोन पैच भी कहते हैं. इस पैच को जहाँ पे डिफेक्ट है, ओपनिंग है, वहाँ पे इसको प्लेस करके उसको सूचरिंग कर देते हैं. ठीक है. इफ़ टू लार्ज विथ अ पैच ऑफ थिन लेदर लाइक मटेरियल, जिसको जैसे पेरिकार्डियम का लेयर होता है, ठीक है, उससे भी हम लेके एक थिन लेयर लेके हम उसके ऊपर लगा सकते हैं. अदरवाइज एक मैनमेड मटेरियल भी आता है जो हम यूज़ करते हैं, उसको हम डेकोरम पैच भी कहते हैं. ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, जहाँ पे डिफेक्ट है, ओपनिंग है, वहाँ पे एक पैच को लगा के हम ओपनिंग को क्लोज करते हैं. ठीक है. देन लास्ट, कॉम्प्लिकेशन. कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या देखने को मिलेगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, क्रॉनिक हार्ट फेलियर, एम्बोलिक स्ट्रोक, आर्टीरियल एरिथमिया एंड इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाइटिस. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो समझ में आया होगा. अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर आकर ज़रूर बताएं. सो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे. तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे. टिल देन
Stay healthy, take care, and thanks for watching.